yet another episode of Election Yatra, and we have reached the Vidarbh region of Maharashtra. Now, Vidarbh is to Maharashtra what Uttar Pradesh is to India, meaning that the electoral outcome here is very significant, almost to the point that it decides who will rule Maharashtra. With 62 assembly constituencies on offer, Vidarbh has always played a decisive role in Maharashtra politics. For a decade, since 2014, Vidarbh was dominated by the BJP. In the current assembly poll race, 36 out of 76 seats will witness a direct contest between the BJP and the Congress in this region. No wonder then that both Prime Minister Narendra Modi and Leader of Opposition Rahul Gandhi held multiple rallies in this region. In fact, Rahul Gandhi himself kick-started his poll campaign in Vidarbh, participating in a Samvidhan Sammelan in Nagpur. Despite being a BJP stronghold for the last 10 years, this region witnessed a comeback of sorts for the Congress in the 2024 Lok Sabha polls. The Maha Vikas Aghadi ended up winning 7 out of 10 seats in the region, with the Congress winning 5 out of 7 they contested in. We are in Katol today, one of the 62 assembly constituencies in Vidarbha. The former Home Minister of Maharashtra, Anil Deshmukh, has been representing this constituency since 1995. This time, the NCP-SP announced his name in the first list, but by the fourth list, he was replaced by his son Salil Deshmukh. One interesting fact about this constituency is that NCP Ajit Pawar faction has fielded a namesake of Anil Deshmukh in the electoral fray. What does Anil Deshmukh, the real Anil Deshmukh, the former Home Minister of Maharashtra, have to say about this and the other issues of Vidarbha? Let's find out. In the 2019 assembly polls, Anil Deshmukh secured over 50% of the votes, winning the election in Katol for 5 terms. The Sharad Pawar faction of the NCP now hopes Katol will repose their faith in the Deshmukh family. Former Home Minister of Maharashtra, Anil Deshmukh, is joining us on the broadcast. We are in his constituency, Katol, and he has been representing this from 1995. But this time around, his son is in the electoral fray. बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहला सवाल, जो फैसला बदला गया आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से, उसी से जुड़ा हुआ है कि इस बार आप नहीं बल्कि आपके बेटे लड़ रहे हैं इस कंस्टिट्यूएंसी से. ऐसा है कि हमने सब पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता है उनसे सलाह की, और जो मेरा बेटा है सलील अनिल देशमुख, वो करीबन 15 साल से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा है. तो सबने सोचा कि इतने साल से काम कर रहा है तो क्यों ना नए लड़के को चांस दिया जाए करके हमने सबने सोच के सलील देशमुख को यहाँ पे तुतारी वादनारा मानुस, ये हमारा सिंबल है, तुतारी बजाने वाला आदमी, ये सिंबल के ऊपर उसको खड़ा किया है. जो अजीत पवार वाला फैक्शन है, उन्होंने आपके नाम का ये कैंडिडेट मैदान में उतारा है. क्या स्ट्रैटेजी आपको लग रहा है कि वो आपके नाम पर वोट्स अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेंगे? ये है उनकी स्ट्रैटेजी? ये सब भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है. यहाँ पे मेरे खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है. उसी के साथ साथ इस बीजेपी वालों ने और अजीत पवार के पार्टी ने एक मेरे नाम का एक आदमी है, थुगाव निपानी थुगाव करके गांव है, वहां पे एक अनिल शंकरराव देशमुख नाम का एक आदमी था. उसको उठा के ले गए घर में से. मजदूरी करने वाला था बेचारा, गरीब आदमी था, गरीब आदमी है. उसको उठा के ले गए, उसको जबरन उसको फॉर्म भरने लगा है. उसको घड़ी सिंबल, उसका सिंबल जो एबी फॉर्म जो आया अजीत पवार पार्टी का घड़ी का, उसको खास चार्टर फ्लाइट से लाया गया. चार्टर्ड फ्लाइट से एबी फॉर्म लाया गया. चार्टर्ड फ्लाइट से एबी फॉर्म लगाने के बाद में टाइम पे आधा घंटा पहले वो
एबी फॉर्म पहुंचा और उसने अनिल देशमुख घड़ी ऐसा चिन्ह दिया। इसके पीछे यही इनका है कि किसी भी हालत में अनिल देशमुख के होठ काटने के लिए उन्होंने इस प्रकार का डुप्लीकेट अनिल देशमुख खड़ा किया है। ये आपके नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने की स्ट्रैटेजी, ऐसा कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि किस प्रकार से अनिल देशमुख के नाम से वोट काटे जाए, उनके वोट कम कर दिए जाए, उसके लिए उनकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन वो जनता खूब समझती है। आप किसी को पूछेंगे वो बताएंगे कि वो जो खड़ा है घड़ी के सिंबल पे वो डुप्लीकेट अनिल देशमुख है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है वोटर्स में, क्योंकि एनसीपी में 2 फाड़ हुई, शिवसेना में 2 फाड़, 2 कैंप्स दोनों पार्टियों में बने, तो इसको लेके वोटर्स में कोई कंफ्यूजन है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले हमारा सिंबल जो है तुतारी बजाने वाला आदमी, ये सिंबल नया था, लेकिन हमने इसको घर घर पहुंचाने के लिए कैंपेन हमने चालू किया है और काफी हद तक ये लोगों को अभी आप किसी को पूछेंगे सिंबल क्या है तो बराबर बताएंगे। पहले का हमारा सिंबल तो चोरी चले गया, आपको तो पता है क्या हुआ। तो ये हमारा तुतारी बजाने वाला आदमी, मराठी में उसको बोलते हैं तुतारी वादोनारा मानुस, ये अभी घर घर में पहुंचा है। और विदर्भ के रीजन में एमवीए का जो परफॉर्मेंस था लोकसभा में बहुत अच्छा था, तो आपको लगता है कि वो बढ़त बनी रहेगी? लोकसभा चुनाव में आप देखिए पूरे महाराष्ट्र में 48 में से हमारे 31 जगह है और हमारा जो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी जो है उसमें से 10 जगह हमने लड़ाए थे, 8 जगह हमको कामयाबी मिली। और इस टाइम विधानसभा में भी उसी प्रकार का चित्र है। विदर्भ में भी अच्छी तरीके से कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना हम इकट्ठा मिलकर जो लड़ रहे हैं महाविकास आघाड़ी के नाम पे, उसको अच्छी कामयाबी मिलेगी ऐसा दिख रहा है। बीजेपी का जो नैरेटिव है, बीजेपी कह रही है कि विपक्ष जो है वो लोगों को कास्ट के बेसिस पर बांट रहा है, और विदर्भ की बात करें तो ओबीसी, ट्राइबल वोट और दलित जो है यहाँ पर 80% उनका पूरा पॉपुलेशन है वोटर्स के लिहाज से। तो क्या आपको लगता है कि ये बैकफायर करेगा एमवीए पर, ये जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कैसा है कि बीजेपी ने पहले काफी ओबीसी और मराठे के बीच में झगड़ा लड़ाने की कोशिश किया। उधर में एकनाथ शिंदे जाते थे, ओबीसी एकनाथ शिंदे जाते थे, मराठा समाज के नेता जो जरांगे पाटिल साहब थे उनको जाके मिलके उनको कुछ आश्वासित करते थे। इधर देवेंद्र फडणवीस ओबीसी के नेताओं को जाके इधर आश्वासित करते थे। इस दोनों को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ऐसा है कि सरकार की एक नीति होती है, एक फैसला होता है, एक फैसला करके उन्होंने इस प्रकार का ओबीसी और मराठा समाज जो थे उसको उन्होंने राज्य की तरफ से उन्होंने आश्वासित करना था, लेकिन उन्होंने झगड़ा लड़ाने की कोशिश किया। एकनाथ शिंदे ने मराठा समाज को आश्वासन दिया, उद्धव जी ठाकरे ने ओबीसी समाज को आश्वासन दिया। इस प्रकार से नहीं, सरकार मतलब एक फैसला होना चाहिए, लेकिन इन्होंने दोनों को लड़ाने की कोशिश किया। जब हड्डी गले तक आ गई तब विपक्ष लोगों को बोल रहे कि आप भी साथ में आओ, इसको सुलझाने की हमको मदद करो। आप समझी, इस प्रकार की राजनीति करने की कोशिश इन्होंने की है। लेकिन ओबीसी समाज जो हमारा है, सबकी मांग ये है कि ओबीसी मराठा समाज को आरक्षण देने के बारे में किसकी दो राय नहीं है, लेकिन ओबीसी समाज का आरक्षण कम करके मराठा समाज को देना, उसके लिए सरकार, उसके लिए लोग चाहते नहीं कि ऐसा कुछ हो कि ओबीसी समाज का आरक्षण कम हो। उसके लिए हमने जो 5 सूत्री कार्यक्रम जो दिया है महाविकास आघाड़ी की तरफ से, उसमें यही बात हमने कही है कि यहाँ पे जनगणना होना चाहिए, जाति निहाय जनगणना होना चाहिए नंबर 1, और जाति निहाय जनगणना होने के बाद में जो आरक्षण की जो मर्यादा है 50%, उसको बढ़ाने की बात हमने की है। और हमने आश्वासित किया है कि जब भी हमको मौका मिलेगा हम जनगणना करेंगे, जाति न्याय जनगणना करेंगे और आरक्षण की लिमिट बढ़ाएंगे। एक और मुद्दा है कि जो एलिगेशंस आप पर लगे उसके बाद आपको जेल जाना पड़ा, आपने एक किताब भी इस बारे में लिखी। क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आप लोगों ने ये फैसला लिया कि इस बार आप चुनाव में नहीं उतरेंगे? और ये जो एलिगेशंस आप पर लगे इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कैसे आपको पता है कि मुकेश अंबानी के घर के सामने, माननीय मुकेश जी अंबानी, उनके घर के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बम रखा गया। हमने उसकी इंक्वायरी चालू किया। कुछ दिनों के बाद वो स्कॉर्पियो गाड़ी का जो मालिक था मनसुख हिरेन, उसकी हत्या कर दी गई। जब हमने इसकी पूरी इंक्वायरी की तो हमको मालूम पड़ा कि ये दोनों चीजें, मुकेश अंबानी के घर के सामने बम रखना और वो स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक की हत्या करना के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह जो थे उस टाइम मुंबई के पुलिस कमिश्नर, मुंबई के पुलिस
परमवीर सिंह, ये मास्टरमाइंड, ये दोनों चीज करने के लिए थे। उनके साथ में उनके 5-6 API PI उनके साथ में थे। मैंने एज ए होम मिनिस्टर परमवीर सिंह को हमने सस्पेंड किया। जो उनके साथ में 5-6 लोग थे, सचिन वाजे और बाकी लोग थे, उनको सरकारी नौकरी से डिसमिस किया। ये करने के बाद में देवेंद्र फडणवीस ने देखा कि परमवीर सिंह नाराज है, उन्होंने उनको पकड़ के बोला कि आप अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगाओ। मेरे ऊपर 100 करोड़ का आरोप लगाया गया, मेरे पीछे ईडी लगाई गई, CBI लगाई, मुझे अरेस्ट किया गया। उसके बाद में पूरी इंक्वायरी करने के बाद में जब मामला कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया मामला, हाई कोर्ट में जाने के बाद वहां पे भी और मामला और जस्टिस चांदीवाल के सामने जब गया, जस्टिस चांदीवाल साहब ने पूरा 11 महीने सुनवाई किया। 11 महीने सुनवाई करके 14 से पन्नों का रिपोर्ट दिया। वो रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगे इसमें कोई सच्चाई नहीं है, झूठे आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लगाए गए। नंबर 2, जो भी आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लगाए गए उसका कोई भी सबूत नहीं है, हियर से के ऊपर ये आरोप लगाए गए। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज, मेरे ऊपर 100 करोड़ का आरोप लगा था, लेकिन ईडी ने जब चार्जशीट हाईकोर्ट में दाखिल की तो 100 करोड़ से वो आरोप आ गया था 1,71,00,000, 1.71 करोड़। आरोप 100 करोड़ का, चार्जशीट दाखिल किया 1,71,00,000 की। कोर्ट ने जब पूछा कि इसके भी आपके पास कुछ सबूत है क्या, तो वो सबूत उस टाइम 1,71,00,000 के भी नहीं बता पाए। तो मुझे क्लीन चिट, जस्टिस चांदीवाल ने मुझे क्लीन चिट दिया। ये भी एक सेंटिमेंट है ग्राउंड पर, ये भी एक मुद्दा है आपकी कंस्टिट्यूएंसी में। हाँ बिल्कुल, लोगों को मालूम है कि किस तरीके से उद्धव जी ठाकरे की सरकार गिराने के लिए पूरी साजिश थी। आपकी कंस्टिट्यूएंसी, अगर आपका बेटा जीतता है तो फिर वो संभालेगा, फिर आपकी भूमिका, बड़ी भूमिका पार्टी में, बड़ी भूमिका देश में, क्या आपका रोल रहेगा? ये सब जनता की आशीर्वाद से मेरा बेटा 100% चुन के आने वाला है। वो विधायक बनने के बाद में इधर काम करेगा और मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। और मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे MLC भी बनाएंगी और सरकार में मंत्री करके भी मुझे लेंगे। बड़ा दावा आप कर रहे हैं या पहली बात हो गई है? ये मुझे विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट टू योर पार्टी। थैंक यू। There are several narratives doing the rounds. There are allegations and counter allegations, but they should never take the attention away from the issues on ground. And when you talk about Vidarbh, the biggest factor or the common factor in the entire region is that of the farmers, the distress that the farmers face. In fact, according to the state's Relief and Rehabilitation Department, last year over 2,800 farmers ended their lives. Yes, ex gratia has been provided to those who have been found eligible, inquiries pending in some cases, and some were found ineligible. Now, it's not like the government is not helping, but despite multiple schemes, despite the loan waivers, the challenge persists. काय समस्या आहे शेतकऱ्यांची इथे? समस्या म्हणजे कापसाले भाव, सोयाबीनले भाव, सकाळपासून आपण काम करतो त्याला हमी भाव तर दिला पाहिजे. कापसाले, चण्याले, चवळा, कोणत्याच मालाले. आणि सरकार काय करत नाही का तुमच्यासाठी? एवढे स्कीम्स अनाउन्स करतात. तर आम्ही हे ठेक्याची शेती आहे, आमची स्वतःची नाही आहे. ज्याची स्वतःची आहे या शेतीवर तुम्ही मजुरी करता? मजुरी करतो, आमची स्वतःची नाही आहे. तर जे मजुरी करतात त्यांची काय समस्या? तुम्हाला बरोबर भाव मिळतो का? मजुरी मिळते, पण हे शेतमालाला भाव नाही मिळत ना, दुसऱ्या जवळ आम्ही करतो. आणि तुमची काय अपेक्षा आहे सरकारपासून? हे कपासले किंवा सोयाबीनले, कोणी मालाले, तुरीला हे भाव मिळाला पाहिजे बा, हे अपेक्षा आहे, दुसरं काही नाही. तर जेवढे सरकार आले, कधी काँग्रेस होती, कधी BJP होती, त्याने शेतकऱ्यांसाठी काहीच नाही केलं. ते का देतात, काही नाही देत, या ना, काहीच नाही देत. ते या इथे या. काहीतरी येतवरच म्हणते. ज्याची आता समजा शेती आहे त्याला मिळत आहे असं लाल्याचे पैसे हे ते, पण आम्हाला असे म्हणजे ठेकेवाल्याला काहीच नाही मिळत ना. जे बोलला ते बोला. जे शेतकरी जे आत्महत्या करतात त्याच्यावर तुम्हाला काय बोलायचं आहे? हे कोणाचं कर्ज पाणी झालं मग आता काही न द्यायचं, मग त्याच्यासाठी मरायचं. तुमची काय अपेक्षा आहे सरकारकडून? आणि सरकार काय करते का? कोणतीही पार्टी असो, कोणती कोणतेही राव, कोणी काही करू शकतच नाही.
आमचे 2 हात राबते त्यांना आम्ही पोट भरतो. आमच्या 2 हाताशिवाय तर पोट भरणंच आहे ना. आमचे हात काम करते तर आम्ही जगू. तर आता हे आलं, इलेक्शन आलं, तर तुमच्या इथे लोक येतात वोट मागायला, काय सांगता तुम्हाला? आम्ही का सांगणार, आम्ही काही नाही सांगत. नाही, नेते काय बोलतात? मतदान आलं तरीच लोक येतात ते. आम्हाला द्या, आम्हाला द्या. आमच्याकडे लक्ष ठेव जा म्हणते. कमळ पा, पंजा पा, ढमक का, टमक पा, सारच पा म्हणते. आणि आमची कोणती दशा आहेत पाहतात का ते लोक? नाही पाहत.